Good evening, students. Just we are going to continue the topic, the friction, lecture number 3. Let me discuss what point to be covered in the today's topic. Uh, the fluid frictions. What point you have to cover today? The fluid frictions, the air frictions, factors on which fluids friction depends, and friction is necessary or evil. That points you have to cover. In the very first topic, what we discuss? Types of frictions. In types of friction, what we discuss? The frictions in solid. Okay, that we discuss. Okay, the friction is a self-adjusting force. Now, today we will discuss about friction in fluids. Fluids including the liquid as well as gas. What including fluids? Liquid as well as gas. Liquid friction as well as just a minute. Liquid as well as gas. Listen carefully. About the liquid friction, what we can, I just that time only I told you. For solid, just we are using the word friction only. For liquid, the other again specific name is there. That is known as the viscous force. What we are saying for that? Viscous force. Viscous. Actually, it is from the fluid, liquid. It is a layer by layer. It is fluid will be going to slides. That is known as the viscous force, and the force of the gas friction also known as the drag force. What we are saying for that? Drag. Air friction or gas friction is the same. Air friction and drag force, one is the same. Okay, as well as factors which on the fluid friction depends. Which are the friction factors are affecting on the frictions? It is the number one. It is some impurities are there. If you are adding some impurities, the frictions are going to change. Shape of the objects, area of the area of contact, that factors are affecting on the frictions. Okay, and friction is necessary. Where it will be necessary for us? That point also we have to cover in today's topic. Got it? Let me go one by one now. If you are finding here, if you are observing on picture here picture, the person is here and he is going to jump from that and using by the parachute. If you using by the parachute, what are you are observing here? At the gravity is a pulling downward here, correct? At the same time, the air is a applying here is here applying the opposing force, and because of that, that speed of the person is going to reduce. You know very well the friction is responsible for to reduce the speed of the objects, correct? And the parachute is doing the same purpose. If you are without parachutes, the person is going to jump. You know that the speed the object will be accelerating at the every second 9.8 meter per second. Then because of the maximum speed, maybe some difficulty for that the person, but to maintain the speed, the person is using that parachutes. That is the air is a drag force you are applying, and because of that, the air frictions will the air resistance, that is known as the air frictions or drag force, and because of that, we are able to maintain the speed of the parachute. Okay, this is the one example given here on the fluid frictions. I told already fluid including the both liquid as well as gases. Okay, here given the examples, we know that air is a very light, lighter and thin. The here also the particular layers are there, and at express the frictional force on the objects moving through it. They are applying the friction like we discussed about the paragliding. Okay, the same frictions we are applicable for that, the motion of the aeroplane, the motion of the helicopter, all the things are depends upon the same factors. If you are using that, the fan also depends upon the frictions only. Because of the motion of fans, the air is going to forcefully downsides. Exhaust fans, the air is going to suck. Okay, these are the different kinds of the motions of the fans. Here the bird, if you are observing here, when the birds are flying, because of the wings,
the dynamic force, dynamic is aerodynamic, we are saying. Aerodynamic means that because of the motions of that uneven position of the wings, the birds are lifting on the air. This is also because of the air frictions only. The fluids are substances that can flow on that applications of the force or the pressures on them. Gases and liquids are the fluids. Both are the fluids. Correct? Understood? Which are the fluids? Fluid including the both gases as well as liquid. Got it? The both are including fluids, and for moving that, like we are going to swim in the swimming pool also, if you are swimming in water, that time also the kind of the friction is there. Okay, that kind of also friction is there, and that kind of friction is known as the that force is known as the viscous force. Friction is also known as the viscous force. Here the next one, here how to decrease or how to decrease the frictions. It is very simple. What I told, generally, if you know very well, if you are suppose if you are adding some impurities, then friction is going to change. Means first factors, adding like suppose if you are using the water or impurities, again one factor is affect temperature. Temperature is also affecting. While if you are washing your cloth, पानी से कपड़े धोते हैं ना, जब क्या होता है, if you are adding some impurities, detergent you are adding, detergent उसमें ऐड करते हैं. क्यों करते हैं? Because the friction is going to change. पानी का फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा? चेंज होगा. इसलिए क्या होगा, तुम्हारा डस्ट पार्टिकल्स इजीली रिमूव हो गए. This is because of frictions. Okay, as well as if you finding that many times if you are using the hot water, है ना, पानी गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं अपन, तो वो भी उससे क्या है, गर्म पानी से कपड़े इजीली साफ निकलते हैं. क्यों? Because of again because of the temperature also the friction is going to change, and it will be easy to clean the cloth also, है ना. आपने देखा होगा शायद if you are finding कपड़े धोते समय आपको बहुत एक्सपीरियंस आ सकता है इजीली, because if we are discussing about the liquid here. Okay, पानी के बारे में सोच रहे हैं अपन, we are discussing about the liquid. तो कपड़े धोते समय क्या होता है, अभी आपने देखा एग्जांपल में आप इंप्यूरिटीज ऐड कर रहे हैं, डिटर्जेंट ऐड कर रहे हैं, जब फ्रिक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, चेंज हो रहा है ना. कुछ टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्रिक्शन चेंज हो रहा है. और क्या करते हैं, आपको कभी एक्सपीरियंस कभी आया होगा आपको, बोर के पानी से कपड़े धोने में और नल के पानी से कपड़े धोने में क्या है, तुम्हारा डिफरेंस महसूस किया है कभी आपने? नहीं किया है. तो आपके पेरेंट्स से पूछिए. तो जो है तुम्हारा जो नल के पानी से कपड़े धोना ईजी, थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि उसमें क्या उसका फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा कंपेरेटिवली कम होता है, और बोर के पानी से कपड़े धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है. दैट इज अगेन डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शंस. और आपने देखा होगा इन द ड्यूरेशन सीजन ऑफ द रेनी सीजन्स में क्या होता है, कभी कभी पानी में मच्छर मॉस्किटो तैयार होते हैं, बराबर है ना, मच्छर पैदा होते हैं. तो क्या सजेस्ट किया जाता है कि आपने को उस पर क्या करें, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल थोड़ा स्प्रेड करो बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगेन द पेट्रोल और वट एवर द काइंड ऑफ द इम्प्योरिटीज अगेन दे आर गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. क्या फ्रिक्शन रिड्यूस भी करने के लिए और फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए भी इम्प्योरिटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज वी आर यूजिंग, है ना. तो उस पर रॉकेट पे क्या करते हैं, पानी पे क्या करते हैं अपन, उस पर पेट्रोल या उस पर रॉकेट स्प्रेड करने से क्या होता है, उसकी फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा कम होता है. जो इंसेक्ट जो है पानी पे चल सकते थे, उसमें रॉकेट डालने से क्या होगा, उसमें क्या होगा तुम्हारे, वो डूब जाएंगे, है ना. तो उसका पानी का फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा कम हो गया. तो वहाँ पे वो पनप के गए क्या, मच्छर मॉस्किटो उसमें पैदा हो गए क्या, नहीं हो गए. दैट मीन आल्सो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशंस. दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज अबाउट द एडिंग इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटी ऐड करने से तो भी फ्रिक्शन कम हो रहा है. बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आल्सो. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. टेम्परेचर से भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है ना. अपन और एक बात क्या है, तुम्हारा शेप ऑफ द बॉडी का शेप, है ना, स्ट्रीमलाइन शेप, है ना. बॉडी जैसे आप देखें कि जैसे कि शेप ऑफ द बर्ड कैसा होता है ना, शेप ऑफ द एरोप्लेन, शेप ऑफ द 4-व्हीलर कैसा होता है तुम्हारा, दिस इज नोन एज अ स्ट्रीमलाइन शेप. बिकॉज ऑफ द शेप आल्सो एरोडायनामिक शेप. वेरी गुड. व्हाई वी आर सीइंग द एरोडायनामिक? बिकॉज इट विल बी इजी टू फ्लो इन द एयर, है ना. तो क्या है, बिकॉज ऑफ द शेप आल्सो इट विल बी अफेक्ट. शेप से भी क्या होता है तुम्हारा, इट विल बी अफेक्ट्स फॉर रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग द फ्रिक्शंस. बेसिकली समझ में पॉइंट्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं. क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी तुम्हारा इस पे क्या होता है, फ्रिक्शंस पे इट विल बी इम्पैक्ट.
विंड ऑल्सो इम्पैक्ट, है ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हवा आते हैं, है ना। आप जैसे कि आप सपोज बॉल डाल रहे हो और वही साइड से हवा होगी, तो क्या आपकी बॉल की स्पीड क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। वही साइड से बॉल डाल रहे हो और वही साइड में हवा होगी तो क्या होगी, अपोजिट साइड में हवा होगी तो स्पीड क्या होगी तुम्हारी, कम। दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर आल्सो अफेक्टिंग, है ना, दैट इज विंड आल्सो, टेम्परेचर आल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ गया तुम्हारा, विंड आ गया, उसमें वाटर आ गया, पानी आ गया, है ना, जैसे कि तुम्हारा मड है, सॉइल है, सॉइल में पानी गिरने से क्या कीचड़ हो गया तो स्लिपरी हो गया, है ना। तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शंस के लिए, है ना। आप देखते होंगे ग्रासी पे अभी जो बारिश के दिनों में थोड़ा सा नीचे से ग्रास आता है ना, बाजू में आप मट्टी से चलते हो तो क्या स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ग्रास पे से आप इजीली कंफर्ट चल सकते हो। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रास में क्या होता है, जो बारीक बारीक घास आता है ना, उसमें क्या फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा, ज़्यादा होता है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द टू इंक्रीज और रिड्यूस द frictions. Okay, again here if you are finding here in a pictures here in a liquid, the person is swimming in a liquid, तो जो स्विमर है उनको एक्सपीरियंस शायद आता होगा, है ना। आप में से कोई जानता है स्विमिंग, जानता है कोई, वेरी गुड। तो आप सभी ने स्विमिंग किया है, कौन से पानी में किया है अपनी स्विमिंग में। अभी जब पानी में स्विमिंग जब करते हो कंटिन्यूस इफ यू आर स्विमिंग, तो आपको डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस आएगा, है ना। मीठे पानी में की स्विमिंग जो है, जो आप स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग करना, इट इज़ वेरी इजी। एट द सेम टाइम स्विमिंग इन सॉल्टी वाटर, है ना, इट इज़ वेरी हार्ड। व्हाई, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली बाउंडेड देयर, तो उसमें क्या है तुम्हारा विस्कस फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज़्यादा होता है ना। तो स्विमिंग पूल में भी क्या है, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर जब ज़्यादा ऐड कर लेते कभी कभी, तो उसमें सॉल्ट तुम्हारा ज़्यादा होने से भी क्या है, स्विमिंग पूल में तुम्हारी स्पीड तुम्हारा ज़्यादा इफर्ट लेना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, तुम्हारे इम्प्यूरिटीज डालने से भी तुम्हारा फ्रिक्शंस क्या है, पानी के लेयर्स। अभी चलो एक इमेजिन करो, खाली सोचो, आप स्विमिंग कर रहे हो, पानी में स्विमिंग कर रहे हो, आपकी स्पीड क्या होगी। एट द सेम टाइम हनी है ना, आप उसमें हनी में स्विमिंग कर रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, है ना। हनी क्या है तुम्हारा, इट इज ए वेरी डेंस है ना, इमेजिन कर नहीं सकते। हाँ, तो हनी क्या है, ये तुम्हारा कंप्यूटर डेंस है, तो उसमें तुम्हारे को ऐसा उसको करने के लिए तुम्हारे को ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर, दैट इज डिपेंड्स अपॉन सब्सटेंस आल्सो, कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, विच सब्सटेंस वी आर यूजिंग। ओके, तो फ्रिक्शंस में क्या है तुम्हारा, अभी कुछ सब्सटेंस है, सपोज आपकी पानी की बॉटल है या कोई ढक्कन है, तो कभी कभी क्या है उसका कैप खुलता नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हॉट टेम्परेचर बढ़ने से क्या है तुम्हारा उसका जो लीड जो है इजीली खुल जाती है। व्हाई, इट विल बी रिड्यूसिंग द फ्रिक्शंस, है ना। लुब्रिकेंट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, इम्प्यूरिटीज डालते हैं, तो वहाँ से भी क्या है तुम्हारा फ्रिक्शंस तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा चेंज हो रहा है। हाँ, नट के बीच में ऑयल डालते हैं, नट कभी खुलता नहीं तो क्या करते हैं, उसके बीच में अपन ऑयल लुब्रिकेंट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, क्यों, कि वहाँ पे क्या हो इजीली स्मूथ हो जाएंगे, उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। कम हो तो क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा खुलने के लिए, नट खुलने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, दैट इज सेवरल फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शंस हियर गिवन अबाउट द स्विमर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स इन अ लिक्विड, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड्स। डिपेंड कर रहा है तुम्हारा फ्लूइड पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, कौन से पानी में तैरना, है ना, जो आप बावड़ी के पानी में तैर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, उसका आपका फ्रिक्शन अलग होगा। स्विमिंग पूल में फ्रिक्शन इजीली तुम स्विमिंग कर रहे हो, उसका फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा, अलग होगा। एट द सेम टाइम आप सॉल्टी वाटर में आप स्विमिंग कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस भी क्या होगा आपका, अलग आएगा। तो सॉल्टी वाटर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विम, उसका फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, अपोजिंग फोर्स क्या होता है सॉल्टी वाटर में, ज़्यादा होता है ना। एट द सेम टाइम स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी थोड़ा सा फिल्टर किया होता है, प्योर पानी होता है थोड़ा सा, तो वो टाइम में स्विमिंग पूल में क्या है, आपको स्विमिंग करना कंपेरेटिवली इजी होता है ना। यहाँ पे वही बताया, दैट इज फ्रिक्शंस ऑफ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, है ना, पानी किस तरह से पानी, कौन सा पानी है, तो उस तरह से पानी की स्पीड में तुम्हारा आदमी की स्पीड क्या है तुम्हारी डिपेंड करेगी, है ना। तो कभी कंपटीशन है, सपोज 100 मीटर पानी का स्विमिंग कंपटीशन है, एक आदमी को खारे पानी में तैरने के लिए बोले और एक आदमी को मीठे पानी में तैरने के लिए बोले, दोनों का टाइम डिफरेंस अलग आएगा, दोनों का टाइम पे तुम्हारा फर्क आएगा, बिकॉज द फ्रिक्शंस डिपेंड्स अपॉन दैट, द डिपेंड अपॉन द रिस्पेक्टेड अबाउट द फ्लूइड्स आल्सो। कौन से फ्लूइड में आप देख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने आपको हनी का, है ना, और पानी का। हनी में स्विमिंग करना बहुत डिफिकल्ट है ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन तुम्हारा अलग आएगा।
पानी में फ्रिक्शंस, पानी में भी बताया मैंने, पानी में भी क्या है तुम्हारा सॉल्टी वाटर है ना, मीठा पानी है, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शंस क्या होगा तुम्हारा अलग आएगा. दैट इज डिपेंड्स अपॉन, कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन द विच काइंड ऑफ द फ्लूइड वी आर यूजिंग फॉर दैट ऑब्जेक्ट. जैसे कि बताया आपको पेन का ढक्कन खोलने के लिए या कोई कैप खोलने के लिए काफ़ी बार अपन पानी डालने से भी स्मूथ होता है ना. पानी से कभी स्मूथ नहीं गया है तो फिर अपन क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज द फ्रिक्शन. समझ में आ गया, हर लिक्विड का फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा अलग. गॉट इट. Here about the liquid, respective liquids depends. Our salty liquids having the different kinds of the frictions, that is all kinds of the liquids having the different frictions. It's that kind of force known as the viscous force. क्या कहेंगे वैसे अपन, viscous force. Frictional force in liquid is known as the viscous. Now here given about that the shape of the bird is known as streamline shape. उसका शेप कैसा है तुम्हारा, एक कोने, एक स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर उसका एक एंगल है ना, यहाँ से तुम्हारा क्या है, जो एनर्जी है, जो हवा है, तो समझो विंड आई है तो क्या है तुम्हारा इजीली तुम्हारे यहाँ से पास हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं अपन स्ट्रीमलाइन. अपने गाड़ी का भी शेप कैसा होता है वैसे स्ट्रीमलाइन ही होता है. एग्जैक्टली ऐसा फ्लैट आप लगाओगे, समझो ऐसा फ्लैट्स पे आप चलाओगे तो नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, वो गाड़ी की स्पीड क्या होगी तुम्हारी कम हो जाएगी, है ना. इस पर क्या फ्रिक्शन किससे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है. दैट द शेप, प्रॉपर शेप, एंड दैट पर्टिकुलर शेप द स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज. तो क्या है उससे क्या करते हैं अपन स्ट्रीमलाइन शेप. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एयरप्लेन. एयरप्लेन का शेप कैसे तुम्हारा सिमिलर एज बर्ड, बर्ड के जैसा होता है ना. जब इसका देखो यहाँ पे मुंह छोटा है इसका, है ना, यहाँ पे विंग्स है, यहाँ पे तुम्हारा टेल के जैसा उससे फैक्टर है, सेम सिमिलर एज. एंड डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन द शेप एंड दैट ऑफ द बर्ड? यस, मेनी सिमिलरिटीज आर देयर, है ना. बोथ हैविंग विच काइंड ऑफ द शेप इज देयर, दैट काइंड ऑफ शेप इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन शेप, है ना. स्ट्रीमलाइन क्या मतलब, जो तुम्हारे हवा को क्या कर रहा है तुम्हारा, उसका रिड्यूस कर रहा है. आपने शायद देखा भी होगा कुछ बर्ड्स जो है तुम्हारे जो फ्लाई होते, जब मुँह होते तो वो कैसे घूमते तुम्हारे, उनका डायरेक्शन भी जो है वी शेप में जाते हैं, है ना. काफ़ी पंछी जो है व्हेन दे आर फ्लाइंग इन अ वी शेप. तो आप देखे होंगे कुछ पंछी जो आगे जाते हैं उनके बाद में ऐसा एक वी शेप फॉर्म करते हैं ना. यहाँ पे ऐसे बर्ड है, सपोज लेट बी इमेजिन यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे 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 सब तुम्हारे बर्ड क्या हो तुम्हारे ऐसे वी शेप में जाते हैं. देखिए कि आपने कभी पूरे ग्रुप ऑफ बर्ड्स होते समय, व्हाई वी आर गोइंग फॉर दैट, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग अगेन, दे नोज द मैकेनिक्स. उनको पता है कि किस तरह से तुम्हारा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा फोर्स सामने वाले को लग रहा है. जब ये थक जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, इसकी जगह दूसरा कोई ले लेगा, है ना. तो सभी को थकना नहीं है, तो उसके फोर्स रिड्यूस करने के लिए ये बर्ड्स भी क्या है तुम्हारे जनरली वी शेप में जाते हैं, बिकॉज दे नोज द ड्रैग फोर्स, दे नो अबाउट द ड्रैग फोर्स. और इसकी वजह से क्या उनकी स्पीड भी तुम्हारी मेंटेनेंस होगी और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे. अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द बर्ड एंड दैट शेप, दैट स्ट्रीमलाइन, दे आर बोथ हैविंग द व्हिच काइंड ऑफ शेप, द स्ट्रीमलाइन शेप इज देयर. Here given about the same thing again. Efforts are therefore made a minimum frictions. तो क्या करना है आपको, मिनिमम फ्रिक्शन करना है. तो मिनिमम फ्रिक्शन करने के लिए करना पड़ेगा आपको शेप उस तरह से ढालना पड़ेगा, है ना. तो उसका शेप किस तरह से आएगा तुम्हारा, स्ट्रीमलाइन शेप आएगा, दैट इज पॉइंटेड शेप आएगा, पॉइंटेड आएगा और तुम्हारा उसमें से बढ़ते जाएगा और पीछे से भी थोड़ा सा क्या होगा तुम्हारा पॉइंटेड हो जाएगा. देखो यहाँ पे एरोप्लेन का क्या है तुम्हारा पॉइंटेड है शाम में, है ना. तो ये हवा कैसे तुम्हारी इस तरह से तुम्हारी डाइवर्ट होगी. तो ये कार का भी कैसे तुम्हारा इसका शेप कैसे तुम्हारा इस तरह से होता है, हवा क्या है इजीली तुम्हारी ऊपर से पास होगी, है ना. फिश का भी शेप क्या है तुम्हारा, पानी क्या इधर से इजीली पास होगा. ये टाइप की शेप को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन शेप. इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन, है ना. इस पर जैसा गए बाद फिर से बाद में फिर से क्या है, अब ये आगे गई, जब आगे जाएगी तो फिर क्या करेगा, पानी से इधर भी पुश करेगा, तो फिर यहाँ पे से और उसको फोर्स मिलने के लिए फोर्स मिलेगा. तो ये क्या होगा तुम्हारा स्ट्रीमलाइन शेप, बिकॉज ऑफ द सच काइंड ऑफ द शेप that the birds as well as the fish are very they are easily changing their position, they are easily locomote from one place to the other place because of the streamline shape. उनका शेप फ्लैट रहता था, then it is very difficult to them swing from one place to the other place. Here given about the same thing about the bird again. The bird again they're having that the wings also, the flat wings, and the face if you are finding the pointed shape, it's again the streamline shapes. और उनकी जो पंख होते हैं, पंख में क्या होता है काफ़ी एनर्जी होती है. व्हेन दे आर पुशिंग एयर डाउन साइड, अब तो क्या है तुम्हारा बर्ड्स क्या आ जाएंगे ऊपर जाएंगे. आपको समझो स्विमिंग में भी एक्सपीरियंस होगा, आप पानी में जब ऐसा ऐसा ऊपर करते हो, पानी को दबाते हो तो क्या होता है आप पानी के ऊपर जाते हो, और आपको नीचे जाना है तो क्या करते हैं आप पानी को, है ना, आप ऊपर फेंकते हो तो आप पानी के
नीचे जाते हो. It is depends because of the frictions only. Here the birds and fishes have the move about that fluids at the time. The the bodies must have the evaluated and the shapes which should make them the less lose less energy. Less energy लगने के लिए कौन सा shape है उसका? Streamline shape. which कौन सा shape है? Streamline. Streamline यानी क्या तुम्हारा ऐसा pointed shape है. यहाँ पे energy क्या हो रही है तुम्हारी easily डाइवर्ट हो रही है. यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है तुम्हारी डाइवर्ट हो रही है. स्ट्रीमलाइन शेप ओवरकमिंग द फ्रिक्शंस. तो फ्रिक्शंस कम करने के लिए किस टाइप ऑफ शेप चाहिए अपने को? तो स्ट्रीमलाइन शेप चाहिए. गॉट इट? We know about the streamline shape here given about the bird also. The bird is flying and the bird having the streamline shape. फिश का भी शेप कैसा है तुम्हारा? स्ट्रीमलाइन है. और उसके विंग्स क्या करे तुम्हारे? इसको एरोडायनामिक, यहाँ पे एयर प्रेशर से क्या करे वो उसके उसे उठा के ऊपर लेके जा रहा है. Here they given about that actually yeah, air friction is only given. I thought he is swimming in water but he is given the air friction only. तो यहाँ पे कोई पर्सन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है सपोज. लेट वी इमेजिन. तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा एयर ड्रैग फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? उसके सरफेस. ग्रेविटी तो इज पुलिंग डाउन. ग्रेविटी क्या कर रही है? उसे नीचे खींच रही है. एट द सेम टाइम इफ द एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज. अभी क्या कर रहा है समझो, पर्सन ऐसे ही मार रहा है जंप, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या है? इतना ही है. तो वहाँ पे इट मे बी हार्म फॉर दैट पर्सन. एट द सेम टाइम इफ सपोज ही इज गोइंग टू इंक्रीज द एरिया, पर्सन ने क्या करे? एरिया बढ़ा दिया. एरिया कैसा बढ़ेगा? विद हेल्प ऑफ द पैराशूट. पैराशूट के हिसाब से क्या एरिया बढ़ जाएगा. देन द पर्सन स्पीड विल गोइंग टू रिड्यूस. अभी सपोज पर्सन ने ऐसा जंप मार रहा है ना, तो यहाँ पे क्या ड्रैग फोर्स तुम्हारा ज्यादा लग रहा है. एट द सेम टाइम पर्सन सपोज जंपिंग लाइक दिस, स्ट्रेट जंप कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा? और उसका एरिया कम हो गया तो उसकी स्पीड क्या होगी तुम्हारी? यहाँ पे ज्यादा आएगी. आपने सपोज पानी में कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तैरते समय आपने ऊपर से पानी में जंप मारी, सीधी जंप मारी, तो क्या पानी के बहुत अंदर तक जाओगे, बराबर है. और आपने आपका सरफेस एरिया बढ़ा के जंप मारी तो आप पानी के इतना अंदर तक नहीं जाओगे. द सेम थिंग हियर इन एयर आल्सो. दैट एयर इज रेजिस्टिंग द पोजिशन. द एयर रेजिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसका एरिया कितना ज्यादा है ना. तो एरिया ज्यादा तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी कम हो गई. एरिया तुम्हारा फैल रहा है तो एरिया फैलने से क्या होगा? उसको स्पीड तुम्हारी रिड्यूस होगी. एट द सेम टाइम द पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, एरिया उसका और कम हो गया है. एरिया कम हो गया तो उसकी स्पीड क्या होगी तुम्हारी? बढ़ेगी, है ना. इफ यू आर फाइंडिंग द जनरल एग्जांपल्स, तो क्या कर रहा है? सपोज सेम मास, सेम मास की क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स. सपोज लेट मी कंसीडर द सेम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सपोज इज आयरन बॉल. ये क्या है तुम्हारा? आयरन बॉल है और सेम मास, दोनों का मास सेम है. मैं क्या बात करूँ ध्यान से? दे आर बोथ हैविंग द सेम मास. आयरन बॉल एंड सपोज द कॉटन बॉल. एक बॉल कॉटन का है और एक बॉल आयरन का है. दोनों एक सेम मास है. और मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत दूर से क्या कर रहा हूँ? ऊपर से मैं क्या रिलीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? आयरन बॉल क्या होगा तुम्हारा? जल्दी आएगा, है ना. तो कॉटन बॉल को आने के लिए समय लगेगा. ये प्रैक्टिकली ऐसा होगा. अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या है? दोनों सेम आएंगे. कब? वैक्यूम में सेम आएंगे, है ना. आपका कहना क्या था? दे विल बी कम एट द सेम टाइम. वो कब सेम आएंगे? जब तुम्हारा एयर इन अब्सेंस ऑफ द एयर. जब एयर होगा देन आयरन बॉल विल बिकम फास्टर एंड दैट कॉटन बॉल विल इट विल टेक टाइम, है ना. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. न्यूटन के हिसाब से क्या है? आपने आयरन बॉल फेंका और फेदर फेंका तो दोनों भी क्या है? एक ही टाइम पे आना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ व्हाट? द एयर ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो जिसका एरिया ज्यादा है उसे फोर्स क्या कर रहा है? नीचे से अप्लाई हो रहा है. उसे अपथ्रस्ट बोलते हैं. नीचे से अप्लाई होने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? अपथ्रस्ट. ओके. उसकी वजह से क्या हो रहा है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिड्यूस. स्पीड कम हो रही है और उसकी वजह से क्या है? ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लोअर डाउन, है ना. एयर फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपन? दूसरा नाम क्या है इसे? ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स बोला है तो ड्रैग बोले तो भी चलेगा. ड्रैग फोर्स और ड्रैग फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन का ही एयर फ्रिक्शन यानी ड्रैग फोर्स. दूसरा नाम क्या है एयर फ्रिक्शन का? ड्रैग फोर्स. गुड. ये रेजिस्टेंस एंड द सेम. फ्रिक्शन का काम क्या है? अपोज करना. किसको अपोज करना? टू रिलेटिव मोशन, है ना. जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसको ये आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसे इसके लिए अपोज कौन कर रहा है? एयर कर रहा है. एयर क्या कर रहा है? ऊपर से आ रहा है ग्रेविटी से, पर एयर क्या कर रहा है? उसे ऊपर पुश कर रहा है ना. उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी स्पीड कम हो रही है. स्पीड कम होने की वजह ही क्या है? तुम्हारा फ्रिक्शन, है ना. तो स्पीड कम करने की वजह ही क्या है? तुम्हारा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का बेसिक रूल ही क्या है? इट इज अपोज टू द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन को अपोज करना, यही सबसे बड़ा काम क्या है तुम्हारा? फ्रिक्शन का, है ना. फ्रिक्शन काम ही क्या है? इसकी स्पीड को रिड्यूस करना है. गॉट इट? समझ में आ गया ये? हाँ बॉस बोलिए. हाँ. यस.
Yeah, the friction is depends upon area of contact also. Very good. The friction depends पे करा तुम्हारा एरिया पे. एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा, है ना. सबसे पहले अपन सॉलिड फ्रिक्शन में वही देखे. द टू टाइप्स ऑफ एरियाज आर देयर. एक्चुअल एरिया इज डिफरेंट एंड अपरेंट एरिया इज डिफरेंट. जो दिखने वाला एरिया अलग होता है और एक्चुअली तुम्हारा सॉलिड में देखे अपन ने जो इंटरलॉकिंग, उस पर भी डिपेंड करता है. सॉलिड में किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा फ्रिक्शन, एरिया पे, इंटरलॉकिंग पे. एट द सेम टाइम हियर आल्सो द सेम. इफ एरिया इंक्रीजेस फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा, फ्रिक्शन भी तुम्हारा बढ़ेगा, है ना. एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा तुम्हारा, कम होगा. आप इमेजिन करो कि सपोज आपके हाथ पैर, जस्ट इमेजिन, सर ऐसा कैसा इमेजिन करेंगे, ऐसा मत बोलो. आपके सपोज हाथ पैर सपोज 4-5 किलोमीटर के होते थे तो आप इजीली पानी पे से वॉक कर सकते थे, पानी पे से चल सकते थे इजीली. जैसे कि आपने देखा होगा स्पाइडर है. स्पाइडर पता है कौन, स्पाइडरमैन नहीं, कार्टून वाला नहीं, है ना. स्पाइडर की देखा है आपने, पानी पे से इजीली चलता है ना. क्यों, उसको भी मास है, बट क्या है उसकी कंपेरेटिव उसकी लेंथ क्या है, पैर की लंबाई क्या है, ज्यादा है. आप निडल देखो आप, है ना, जो निडल, स्विंग निडल जो है, आप पानी पे इस तरह से रखते हो बहुत केयरफुली तो कभी पानी पे फ्लोट हो सकती है. ऐसी रख के देखो, इट इज नॉट पॉसिबल. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बराबर है. एरिया ज्यादा होगा. आप उससे भी अच्छा एग्जांपल, नीडल से एग्जांपल तुम्हारा ब्लेड का, शेविंग ब्लेड. आप शेविंग नहीं करते हो लेकिन शायद पता होना चाहिए आपको. शेविंग ब्लेड समझो फ्लैट है, आप इजीली पानी पे रखो तो शेविंग ब्लेड पानी पे फ्लोट होगी. थोड़ी सी ऐसी इंक्लाइन करो, पानी के अंदर निकल जाएगी. दैट इज फ्रिक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द एरिया आल्सो. अभी सेम ऑब्जेक्ट तुम ऊपर से फेंको एयर में, उसकी स्पीड ज्यादा होगी. सेम ऑब्जेक्ट पानी में आने के बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वाई, द वाटर इज अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शंस. और एयर का फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा, कंपेरेटिवली कम है. वाटर का फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है. और उससे भी ज्यादा फ्रिक्शन किसका है तुम्हारा, सॉलिड का है कि नहीं. ऐसा सॉलिड का फ्रिक्शन देखो. अभी ऊपर से मैं ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं, इमेजिन करो कि भाई 3 लेयर है. कितने लेयर है, 3. ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं मैं एयर में से, तो एयर में से स्पीड तुम्हारी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना. अभी इमेजिन करो ये हाथ के नीचे पानी है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्पीड थोड़ी सी लेस होगी. अब पानी के नीचे क्या है तुम्हारा, ग्राउंड है, सॉइल है, तो वहां पे क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा रुक जाएगा, है ना. क्यों कि सॉलिड में फ्रिक्शन और ज्यादा है. ग्रेविटी तो सब तरफ नीचे खींच रही है आपको, पर इसमें क्या है, सॉलिड ने क्या करा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड. सॉलिड का फ्रिक्शन क्या है, कंपेरेटिवली लिक्विड से और गैस से भी, एयर से भी क्या है, ज्यादा है. समझ में आ गया, है ना. आप जितना इजीली एयर में चल सकते हो, है ना, तो उतना ही जैसे कि बर्ड जो इतना जल्दी इजीली चल सकते हैं, एयर में फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है. एयर में फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है. थोड़ा सा उतना ही उनको पानी में से चलने को थोड़ा सा उनको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी. समझ में आ गया, गुड. नाउ हियर गिवन सम एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शंस. इसके बहुत से एडवांटेजेस है. It's just given you a book, the picture is limited advantages are there, but various advantages about the of the frictions. Here the given of the pen for writing purpose, friction is required. आपके पेन में क्या होता है, एक बॉल होता है, बराबर है, तो बॉल आपका पेज का सरफेस रफ होता है ना. आप जस्ट एक आधी बार ट्राई करो, ग्लास पे पेन से लिख के देखो, पॉसिबल है क्या, इट इज नॉट इजीली पॉसिबल, है ना. क्योंकि ग्लास क्या है तुम्हारा बहुत प्लेन होता है ना. आपका वॉल भी क्या होता है, प्लेन. देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन ग्लास. प्लास्टिक कोटेड में भी राइटिंग लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो क्या है, इजीली लिखने के लिए तुम्हारा पेन है, जो सरफेस तुम्हारा नोटबुक का क्या है, तुम्हारा सरफेस रफ है, देन यू कैन राइट वेरी इजीली. इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली. टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए भी क्या लगेगा आपको, फ्रिक्शंस. आपके हाथों के लाइनिंग देखते होंगे, आपके फिंगर्स देखते होंगे, इस पर लाइनिंग्स होते हैं, है ना. तो क्यों, बिकॉज ऑफ टू होल्ड द ऑब्जेक्ट. इफ द अदरवाइज द ग्लास इज वेरी स्मूथ, इट विल बी फॉल डाउन. वी आर अनेबल टू होल्ड द ग्लास आल्सो, है ना. द सेम द लुब्रिकेंट इज देयर इन आवर जॉइंट्स. अपने जॉइंट्स में क्या होते हैं, तुम्हारे लुब्रिकेंट होते हैं, है ना. एज द पर्सन्स आर गोइंग ओल्डर, आपके समझो घर पे फैमिली मेंबर्स कोई होंगे, समझो दादी चाची मामी कोई होंगे, तो शायद उनके घुटनों में क्या होता होगा, दर्द होता होगा. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट ये लुब्रिकेंट. इसमें क्या होता है, ऑयल होता है, लुब्रिकेंट होता है ना. तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, उसमें का लोगों का क्या होता है, यहाँ पे उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनका ऑयल क्या होता है, कम होता है. तो कम होने से क्या होता है, तुम्हारे जो हड्डी एक दूसरे को टच होती है, टच होने से क्या होता है, उनको पेन होना चालू होता है, दर्द होना चालू होता है. तो फिर क्या है, यहाँ पे भी क्या है, इस फ्रिक्शंस की वजह से दैट इज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शंस, है ना. तो फ्रिक्शंस बढ़ने से क्या हो रहा है, हीट जनरेट होती है यहाँ पे. इसलिए क्या बताया इसमें, यहाँ पे रेड कलर दिखाया है ना.
तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस, तो फिर आपने शायद देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे ऑयल लगाते हैं, देखा क्या? तो ऑयल क्या है, ऑयल से क्या है तुम्हारा उसमें लुब्रिकेंट अंदर जाएगा बॉडी के आपके, तो इसमें क्या है तुम्हारा चलना भी थोड़ा सा क्या होगा तुम्हारा कंपेरेटिवली, यहाँ पे सपोज घुटनों में दर्द हो गया सपोज आपके, तो क्या करते हैं यहाँ पे ऑयल लगाते हैं कि नहीं? ऑयल लगाने से क्या हो जाएगा, तो ऑयल तुम्हारा क्या करेगा, जो बाहर का एक्सटीरियर ऑयल है, अपनी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो अपनी बॉडी का एक्सटीरियर ऑयल भी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ली, तो एब्जॉर्ब करने से भी क्या थोड़ा सा उनको थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, यस, है ना? एंड हियर इफ यू आर फाइंडिंग हियर द रनिंग, द पर्सन इज रनिंग ऑन दैट ग्राउंड, तो यहाँ पे इसके क्या है, शूज को क्या है तुम्हारा रफ सरफेस है टू होल्ड द ग्रिप, तो उसे ग्रिप पकड़ने के लिए क्या है, सरफेस क्या है तुम्हारा रफ है, तो यहाँ पे अपन एकदम प्लेन शूज, अपना शूज पे से लाइनिंग निकल गई तो अपन वो शूज इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। एट द सेम वे फॉर गाड़ी का भी टायर एकदम समझो प्लेन हो गया तो भी इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, है ना? तो क्यों, अभी समझो इसको रुकना है, कहीं करना है, तो रुकने के लिए भी क्या है तुम्हारा फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जैसे गाड़ी चलाने के लिए भी फ्रिक्शन लगता है, उसी तरह से रोकने के लिए भी लगता है। टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या कर तुम्हारा क्लाइम कर रहा है, क्लाइंबिंग के लिए भी आप देखे होंगे आपने, तो क्या करता है उन्होंने उस पर किस पे पहाड़ पे चढ़ा, तो इस पे एंकर से मारता है ना? तो एंकर से मारने के बाद में क्या करता है, उसको होल्ड करके वो आगे क्लाइम कर पाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, फ्रिक्शन है। अब ये एक सुटकेस है, हेवी सुटकेस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द कैरी, बट इफ द रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे रोलर है, बॉल लगा यहाँ पे, है ना, टायर लगा, तो इट विल वेरी कंपेरेटिवली इजीली टू दैट रोल द ऑब्जेक्ट्स। रोलिंग क्या है तुम्हारा, देखिए आपने टाइप ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, स्लाइड करने क्या है ज़्यादा तुम्हारा खराब हो जाएगा, वो स्लाइड में क्या हो तुम्हारा एरिया क्या है तुम्हारा सेम एरिया में जाएगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कंपेरेटिवली कम है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे गाड़ी के टायर क्या है तुम्हारे यहाँ पे रोल हो रहे हैं, देन इट विल बी कंपेरेटिवली इजी टू द कैरी द योर लगेज। तो आपने सूटकेस के भी पीछे देखे होंगे आपने, क्या होता है वहाँ पे गोल व्हील्स होते हैं, है ना? तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शंस कम हो गए, तो आप इजीली फोर्स, थोड़ा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा तुम्हारा वहाँ पे ऑब्जेक्ट विल बी इजीली मूव होगा। ओके, हियर अगेन देखिए सम डिसएडवांटेजेस आर देयर। अब एडवांटेज देखिए अपन, मेनी एडवांटेजेस आर देयर, ओके, सेम वे द मेनी डिसएडवांटेजेस। तो फ्रिक्शन से क्या होता, फ्रिक्शन से बिकॉज ऑफ इट क्रिएट्स द हीट, फ्रिक्शन से क्या होता है तुम्हारा हीट। शायद आपको शायद पता नहीं होगा, चलो ये बात तो पता होगी शायद, तो पिछले बार जब बिफोर इन्वेंशन ऑफ मैचस्टिक्स, जब कार्डिक डब्बी भी का वही काम है, अपने एक दूसरे से रब करने के बाद में क्या होता है उसमें से फ्लेम आता है ना? तो पहले कैसे करते थे, पहले हमारे टाइम पे आपने शायद देखा नहीं होगा, पता नहीं, सफेद टाइम के पत्थर होते, सफेद कलर के पत्थर, गारगोटी बोलते थे हम उसे, एक दूसरे को मारे तो उसमें से चिंगारी आती थी, है ना? तो वो क्या है, उसी तरह से अभी समझो कोई फॉरेस्ट में, हाँ वेरी गुड, वेल्डिंग करते जब समय, वेल्डिंग जब करते हैं ना, जो वेल्डिंग करते समय भी क्या देखते हैं आप, जो ग्राइंडर, जो कटिंग करने का जो कटर होता है आपका, कटर को ऑब्जेक्ट पे रखने से उसमें से भी चिंगारी निकलती है, बराबर है? वाई, फ्रिक्शन की वजह से क्या हीट होता है, आप हाथ को एक दूसरे को रब करो तो वहाँ पे आपके हाथ में से हीट जनरेट होगा, इट जनरेट्स द हीट, तो हीट क्रिएट होगा, और हीट जनरेट होने से क्या होगा तुम्हारा, इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्लेम आल्सो। तो क्या है फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर कैसा होता है, कोई आके जाके आग लगाता है क्या वहां पर? नहीं, तो फिर कैसा होता है, कोई इमेजिन करो, इट इज बिकॉज ऑफ द अगेन द फ्रिक्शन ओनली। एंड तो क्या होता है फॉरेस्ट में, बिकॉज ऑफ द ड्राई सीजन, एक आधी कोई झाड़ की टहनी समझो, ओल्ड एज टहनी गिर गई, तो क्या है, गिरने से क्या ऊपर से कट 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 करके आ रही है, तो यहाँ पे क्रिएट द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या उसमें ऑटोमेटिकली आग लगती है ना? उसे बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। इट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। यहाँ पे देखे लाइटनिंग, देखे लाइटनिंग की होती है, अगर इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, दो क्लाउड है, क्लाउड इसी को टकरा गए, तो टकराने से क्या होगा वहां पे, इट क्रिएट्स द हीट, मैक्सिमम हीट होगी उसमें, है ना? अगेन इट कॉजेज द लाइटनिंग आल्सो। यहाँ पे देखा है आपने, आपके गाड़ी के टायर जो है एकदम चिकने हो गए, ग्लू उसका नहीं है, सरफेस तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एकदम प्लेन हो गया है। जब सरफेस प्लेन होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई द ब्रेक, तो ब्रेक लगाना क्या हो जाएगा आपको, काफी मुश्किल हो जाएगा, है ना? गाड़ी इजीली रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तो वहां पे भी क्या है तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे देखो आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें तो यहाँ पे थ्रेड खराब हो गई इसके, यहाँ पे थ्रेड बोलते हैं ना, आटे बोलते हैं मराठी में, है ना? यहाँ पे देखो इसके क्या है, यहाँ पे चिकना हो गया, यहाँ पे थ्रेड है ना? तो वहाँ पे क्या है, तुम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट वेरी प्रॉपरली। फ्रिक्शन होगा तो अपन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आप घुमा रहे, हीट जनरेट करने से क्या हो रहा है तुम्हारे उसके थ्रेड डैमेज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसका डिसएडवांटेजेस है। अब जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ कट करते समय क्या होता है तुम्हारा, चिंगारी निकलती है, आग निकलती है ना? वो भी है। यहाँ पे साउंड, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड आल्सो। तो बहुत गाड़ी में आप देखिए, गाड़ी में खड़खड़ खड़खड़ आवाज आता है, जैसे एरोप्लेन चल रहा है तो क्या उसके साउंड भी, इट क्रिएट द साउंड आल्सो।
That is basically what the disadvantages are there. It creates the heat. Heat आ रहा है इसमें, मैक्सिमम हीट आ रहा है, गर्म हो रहा है, और क्या है तुम्हारा, इट प्रोड्यूस साउंड, साउंड भी आता है और कभी कभी लाइट भी आता है, लाइट एनर्जी भी है ना. तो यहाँ पे देखिए आपने क्या हो रहा है, तुम्हारा यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं, द फ्रिक्शन कन्वर्ट द लाइट आल्सो, है ना. लाइट का मतलब क्या है, जो चिंगारी आ रही है उसमें फ्लेम आ रहा है, फ्लेम की वजह से क्या है तुम्हारे, क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा बर्न भी हो सकता है, वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस का भी, बिकॉज दीज आर द मेनी डिसएडवांटेजेस आर देयर. समझ में आ गए. हाँ, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है फ्रिक्शंस के. हाँ, हीट, इट क्रिएट द हीट, और हीट की वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या हो तुम्हारा मेंटेनेंस निकलता है उसका, है ना, वेयर एंड टेयर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स गर्मी की वजह से, है ना. साउंड, साउंड क्या तुम्हारा अनइजीनेस फील करता है, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन के साउंड की वजह से क्या पर्सन विल बी द फील अनइजीनेस. लाइट आता है, लाइट की वजह से क्या तुम्हारा, इट विल बी अगेन द काइंड ऑफ द फ्रिक्शंस, लाइटनिंग हो रहा है, यहाँ पे लाइटनिंग दिखा रहा है, यहाँ पे भी लाइट दिखा है ना. इट विल बी अगेन हार्म्स टू अस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सी बात इसमें हो सकते हैं. हियर दे आर आस्किंग टू अस, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एज वेल एज इविल. इविल का मतलब क्या है, बुरा, जरूरी भी है और बुरा भी है. क्यों जरूरी है, बिकॉज वी नो द एडवांटेजेस, सभी एडवांटेजेस देख लिया अपन ने, है ना. अभी सपोज आपको किसी को कभी अच्छा लगता है, किसी को डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. अभी आप सपोज कहीं ठंडी की जगह पे गए सपोज, है ना, आई ग्लेशियर्स के पास देखते हैं, तो सम पर्सन्स आर वेरी इजीली स्लाइडिंग, तो क्या है वो आइस स्लाइडर्स इजीली जाते हैं. क्यों जा से पाते हो, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन रिड्यूस होने से क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं. किसी को क्लाइंबिंग करना होता है तो उनको क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के शूज पहनना पड़ता है. आइस पे चलना आसान होता है क्या, नहीं. तो वहां पे क्या होता है, स्पाइक शूज होते हैं. तो शूज क्या करते तुम्हारे, स्पाइक शूज पर ग्रिप पकड़ पकड़ के, वहां पे स्पाइक शूज नहीं होगे, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आप चल पाओगे क्या, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. इन ग्राउंड ऑल्सो टू मूव द फॉर मूव अ पर्सन ऑल्सो वी रिक्वायर द फ्रिक्शंस. अपने को चलने के लिए भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन से लग रहा है. गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करने के लिए भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन. इफ ब्रेक नहीं लगाओ, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो आपकी गाड़ी रुकेगी क्या, एक बार गई फुल स्पीड में मारेगी किसी को इधर उधर से, चलेगा नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी आल्सो. बट इविल, इविल क्या है, इट क्रिएट्स द हीट, हीट हो रही है उसकी वजह से, साउंड आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का तुम्हारा मेंटेनेंस निकल रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा खराब हो रहा है ना. तो ये क्या है, इसलिए क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा इविल है. बट इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवेयर. विदाउट फ्रिक्शन कांट इमेजिन, अपन विदाउट फ्रिक्शन इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना. हर ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हारे को फ्रिक्शन लगता है. सवेरे उठते हो आप, है ना, ब्रश करते हो, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन लगता है कि नहीं. फ्रिक्शन होता है तो आपकी जो गंदगी है जो दांतों की निकल जाएगी. मॉर्निंग में ब्रश आप नहा लेते हो, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना. नहीं तो फिर क्या है, आपका 10 पार्टिकल जमा हो रहा है, आप उसको साफ करने के लिए आप क्या करें, फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट्स. तो वहाँ पे टू रिमूव द ऑब्जेक्ट्स के लिए भी क्या फ्रिक्शन लग रहा है. हर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी कांट इमेजिन विदाउट द फ्रिक्शंस. हाँ, कपड़े धोने के लिए भी लगता है ना, हर चीज के लिए आपको फ्रिक्शंस लगता है. हाँ, मुझे पता है ना. यू डिस्कस विथ मी ओनली डायरेक्टली, नॉट इन क्लास. गॉट इट. कोई भी प्रॉब्लम है आपको डायरेक्ट मुझसे बात करना है, आपस में बात नहीं करना है. कीप इन माइंड, इफ एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, यू डिस्कस डायरेक्टली विथ मी. गॉट इट. Okay, these are the many advantages. Necessary means we can write the advantages. और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, डिसएडवांटेजेस, है ना. तो क्या है, दोनों भी है. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, कहाँ अपने को फ्रिक्शन रिक्वायर करना है, उसके एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल करना है, वहाँ पे अपन उसके, जैसे कि पैराशूट से अब पर्सन जंप कर रहा है तो वो क्या है, उसका एक एडवांटेजेस ले रहा है वो, है ना. तो क्या पैराशूट नहीं रहता था तो क्या वो सीधा सीधा ग्राउंड पे आता था और कोलैप्स होता था. बट हाँ, तो फिर क्या कर रहा है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर रहा है, पैराशूट का एयर ड्रैग फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और खुद की स्पीड रिड्यूस कर रहा है और बॉडी को खुद को सेव कर ले रहा है ना. दैट इज द एडवांटेजेस. मीन्स इफ यू आर जस्ट थिंकिंग सम अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स, यू कैन फाइंड मेनी एडवांटेजेस एज वेल एज मेनी डिसएडवांटेजेस. तो आपको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू. The many times we are using that the vehicles, the tires, wheels we are using. Why? To reduce the frictions. Frictions कम करके स्पीड बढ़ाना है. फैन में हम बॉल बेरिंग डालते हैं, है ना. क्यों? To reduce the frictions, we are going to increase the speed, है ना. तो various applications are there, many disadvantages as well as advantages of the frictions. Here few questions are there.
लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन किस में है? रोलिंग में है, वेरी गुड। स्लाइडिंग, स्टैटिक्स, रोलिंग एंड कंपोजिट। तो रोलिंग में क्या है तुम्हारा फ्रिक्शन, क्या है तुम्हारा? कम है। कंपोजिट का मतलब क्या है? सबका मिक्सचर, सबको मिला के क्या बन गया तुम्हारा? द नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस कौन सा नहीं है ये बताना है। सरफेस ऑफ वेट सरफेस, सरफेस ऑफ टायर, नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है ना। सरफेस ऑफ टायर क्या है तुम्हारा? स्मूथ है क्या? नहीं है। ये सॉरी, यहां पे भी नहीं, यहां पे आएगा। ये क्या है? टाइस, सरफेस ऑफ टायर तुम्हारा इस्तेमाल कर करके स्मूथ हो सकता है ना। तो इसमें क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है? ग्लेज टायर, यानी क्या, जो तुम्हारा ग्लेज यानी पर्टिकुलर तार वाली टाइल्स डिजाइन होती है, रफ सरफेस वाली डिजाइन होती है, तो पर्टिकुलर टाइल्स है। तो पर्टिकुलर टाइल्स क्या है तुम्हारा? इट विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ वेट, सरफेस ऑफ वेट सरफेस, वेट दो बार पूछा, तो वेट सरफेस क्या है? इट विल बी रिड्यूस द फ्रिक्शंस, है ना। पानी पे क्या कीचड़ हो गया, कीचड़ यानी मड हो गया, मड क्या कर रहा है तुम्हारा? फ्रिक्शन क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यहाँ पे सरफेस ऑफ टायर, टायर तुम्हारा घसने के बाद में चिकना हो गया, चिकना हो तो सरफेस क्या होगा तुम्हारा? फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस, गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस हियर। तो पर्टिकुलर टाइल्स आर गिवन, पर्टिकुलर टाइल्स है, वहां पे तुम्हारा क्या है? उसमें रफ सरफेस है, तो वहां पे क्या है तुम्हारा? इट इज नॉट स्मूथ। एंड सरफेस ऑफ मिरर, मिरर तो बहुत स्मूथ होता है, ग्लास होता है ना, दैट इज वेरी स्मूथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a toy car released with the same initial speed and which travels faster on, देखो क्या पूछ रहा है, देखो, a toy car released with the same speed initially, पहले स्पीड क्या थी उसकी थी, will travel faster on, तो स्पीड बढ़ेगी किस पे? इसका मतलब जहां फ्रिक्शन कम होगा वहां पे स्पीड बढ़ेगी। मडी सरफेस पे बढ़ेगी, पॉलिश मार्बल सरफेस पे बढ़ेगी, हाँ वेरी गुड। पॉलिश पे क्या होगी? स्पीड उसकी बढ़ेगी, वेरी गुड। दैट इज द फ्रिक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस, द स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट एरिया, है ना। तो पहले स्पीड क्या थी टॉय कार पे? टॉय कार विद द सेम इनिशियल स्पीड थोड़ी थी उसकी, तो यहाँ पे क्या है? इट विल ट्रैवल फास्टर ऑन द पॉलिश मार्बल सरफेस। पॉलिश मार्बल पे क्या होगी? मडी पे क्या हो जाएगा? फंस सकती है, वहीं पे गोल गोल हो सकती है ना, वहीं पे उसका फ्रिक्शन ज्यादा होकर वहीं पे ब्लॉक हो सकता है। सीमेंट सरफेस डिपेंड्स करता है हमारा सीमेंट सरफेस किस तरह से है, रफ है सरफेस कैसा है ना। एंड हियर ब्रिक भी क्या होती है तुम्हारी? रफ होती है। तो यहाँ पे क्या है? मोस्ट सुटेबल क्या है तुम्हारा? पॉलिश का मतलब क्या है? उसे चिकना किया गया है ना। पॉलिश है, पॉलिश मार्बल सरफेस पे क्या है? उसकी स्पीड क्या है तुम्हारे? एग्जैक्टली इट विल इंक्रीज द स्पीड। समरी, व्हाट वी लर्न टुडे इस टॉपिक, व्हाट वी लर्न टुडे इज जस्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शंस। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में देखिए अपन ने। फ्लूइड फ्रिक्शन में कौन से फ्रिक्शंस है? फ्रिक्शंस इन लिक्विड, फ्रिक्शंस इन एयर। व्हाट इज नोन एज द फ्रिक्शंस ऑफ लिक्विड? लिक्विड फ्रिक्शन इज नोन एज द विस्कस as well as air, देखें है ना। तो और क्या देखें उसके? इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स? इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटी, इट डिपेंड्स अपॉन शेप, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, it depends upon environmental conditions, okay. That we discuss about the few advantages also, advantages of the object, we discuss about some disadvantages also, and why we can say it is necessary as well as it is the evil for us, that we discuss. Again a few questions are there, that questions are homework questions are there, let me discuss. Frictions can reduce by using, how we are going to reduce? The oil, grease, powder and all of this, very good. We can reduce the frictions with the help of all. Oil is lubricant, grease also, powder, while playing the carom board we are using the powder, okay, it will be going to reduce the frictions, that is the all options are suitable for that, okay. The next one, 4 children were asked to arrange force due to the rolling, static and sliding frictions. तो आपको बताना है स्टैटिक में कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है, स्लाइडिंग में है या it decreases in order, arrange there are given below, choose the correct arrangement. देखो तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ढूंढना है आपको, तो उसमें क्या बताया उसने? नंबर 1 कौन सा दिया तुम्हारा? यहाँ पे एक रोलिंग दिया, स्टैटिक, स्टैटिक सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, एंड स्लाइडिंग, है ना। तो सबसे क्या है? रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। अरेंज द इन फ्रिक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? पहले कौन सा लगोगे आप? सबसे ज्यादा वाला पहले लगोगे,
सबसे ज्यादा किसमें फ्रिक्शन है तुम्हारा? स्टैटिक। जा रहा है क्या ऑब्जेक्ट? स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या? नहीं। तो कहाँ है स्टैटिक, कहाँ है? तो सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारा यहाँ पे? स्टैटिक में है ना। उसके बाद में क्या है तुम्हारा? स्लाइडिंग हो रहा है, थोड़ा फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, और रोलिंग में और थोड़ा फ्रिक्शन कम हो गया। गॉट इट? गुड। द नेक्स्ट वन, the question is given, explain why the objects moving in fluid must have the special shape. क्यों होना चाहिए? because of to reduce the friction, है ना। नहीं नहीं, क्या पूछ रहा है? देखो एयर पूछ रहा है क्या? मूविंग इन फ्लूइड पूछा है। फ्लूइड यानी क्या है? दोनों भी है, लिक्विड भी हो सकता है। विच काइंड ऑफ शेप शुड बी देयर? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप होना चाहिए, है ना, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो ऐसा है बात, क्या होगा उसका शेप कैसे तुम्हारा? स्ट्रीमलाइन रहने से क्या होगा तुम्हारा? इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, like fish, bird, they are the reducing the speed. The next one, if we apply the oil on the door hinges, the friction will be, अभी आप ऑयल डालते हैं डोर hinges पे, तो फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा? It will be decrease. The friction will be decrease. Friction will be never disappear. Friction disappear होगा क्या? नहीं. Always we cannot eliminate the friction. Just we can minimize or we can increase the friction, but we cannot eliminate the frictions. Okay. These are the questions for today's topic. And if you have any doubt in today's sessions, please you ask and clear your doubts. If anyone having doubt, no? Okay. Then we'll wind up the today's session. Thank you.